جب مالدار گھر میں رشتے کا پیغام بھیجتا ہے تو گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جب غریب بھیجتا ہے تو گھر میں استخارے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نہ کیا کرو یار ایسے بات۔ جب ہماری خواہشات اور تمناؤں کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر ہمیں کہیں سکون نہیں ملتا۔ ہمارا رب کہتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت ہی کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ ایک غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری ہی سمجھتے ہیں۔ محبت کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، دکھ دینے کی طاقت، خوشی دینے کی طاقت، اداس کرنے کی طاقت۔ جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ دے، سمجھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی تھا ہی نہیں۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو پھر دل اڑی کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی نایاب ہے۔ وہ لڑکی شاید پاگل تھی، بس رب سے باتیں کرتی تھی، ایک شرم و حیا کا پیکر تھی، کچھ نرم مزاج وہ رکھتی تھی، ایک چمک تھی آنکھ کے پانی میں، ایک نور تھا اس کی تجلی میں، وہ اکثر شام کے آنچل میں۔ اگر نصیب بازاروں میں بکتے ہوتے تو دنیا کے ہر والدین اپنے آپ کو بیچ کر بھی اپنے بچوں کے لیے خرید لیتے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت بڑی اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ کسی بھی انسان کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ کسی کی آنکھ کو اپنے طرز عمل سے آپ دیدہ نہ کریں، جواباً آپ اس کے ایک آنسو کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ باپ کے بارے میں لکھنے بیٹھوں تو قلم ساتھ نہیں دیتا۔ باپ ہے تو گھر میں زندگی ہے، باپ ہے تو گھر میں زندگی پر رونق ہے، باپ ہے تو بچوں کے سارے خواب اپنے ہیں۔ دل کا بوجھ اپنے رب کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا۔ مرد اپنے سامنے کسی کا ایک لفظ اونچا برداشت نہیں کرتے، مگر میں نے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے خاموشی سے گالیاں کھاتے دیکھا ہے مرد کو۔ مخمل دے مسلے تے سجدے کتے نہیں، سڑکاں تے مزدوری کردا رل گیا ماں، تو ہتھاں دے چھالے گن کے بخش دیویں، متھے تے محراب بنانا بھول گیا ماں۔ چائنا کا ایک تاجر کہتا ہے کہ جب مسلمان تاجر میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے مال پر انٹرنیشنل کمپنیوں کے جعلی لیبل اور برانڈ کے نام لکھ دو۔ جب میں ان کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کا کھانا حلال نہیں۔ کیا جعلی سامان بیچنا حلال ہے؟
अशफाक अहमद कहते हैं कि एक फकीर मस्जिद के आगे मांगने बैठा। नमाजी बाहर निकले तो फकीर को डांट कर भगा दिया। अब फकीर मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। वहां भी उसके साथ वही सलूक किया गया। पुजारी बाहर आए तो उसे वहां से भगा दिया। तंग आकर वो शराब खाने के बाहर जाकर बैठ गया। जो शराबी बाहर आता वो उसे कुछ न कुछ दे कर जाता, साथ में दुआ का कहता कि हम तो बड़े गुनहगार हैं, क्या पता तुझे दिया हुआ ही हमारी बख्शिश का बायस बन जाए। मुझे समझ आ गई थी कि गुनाह करके शर्मिंदा होना नेकी करके तकब्बुर करने से बेहतर है। ये किस्सा मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइश हमारे लिए होती ही नहीं, उसका मकसद ही सिर्फ दूसरों की असल शक्ल दिखाना होता है। रब उसी को मयस्सर होता है जो उसे पाना चाहता है। किसी के पास होने से ज्यादा साथ होना जरूरी होता है। कुछ लोग उम्र भर हमारे पास रहते हैं पर साथ कभी नहीं होते। जिंदगी के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरे नहीं बिठाए जा सकते। बस जो आए उसको खुश दिली से खुश आमदीद कहें और जो जाना चाहे उसे अलविदा कहकर रुखसत कर दें। यही आला ज़र्फ़ी है। जो तय पा चुका हो वो होकर ही रहता है। हमारी जबरदस्ती सिवाय हमें तकलीफ में मुब्तला करने के और कुछ नहीं कर सकती। कोई मंजर सदा नहीं रहता, हर ताल्लुक मुसाफिराना। अपने नफ्स की हकीकत का इल्म इंसान को खुदा की मार्फत तक पहुंचाता है। आपकी बुराई वही करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। हर ताल्लुक एहतराम मांगता है। किसी को हासिल करना हो या किसी शख्स को अपना बनाना हो, सबसे अव्वल उसका एहतराम करना लाजमी है। ताल्लुक अक्सर खत्म हो जाते हैं मगर याद रहता है तो उसका एहतराम कि उसने मुझे कितनी इज्जत दी थी, उसने मुझे कितना मान दिया था। ताल्लुक और रिश्ता ये तो रब की तरफ से होता है, मगर एक दूसरे को इज्जत देना, उसका एहतराम करना, ये तो हमारे और आपके अपने हाथ में होता है। उदास मत हो। रब सबसे ज्यादा मायूस कुन लम्हात में ही उम्मीद भेजता है। सबसे भारी बारिश तारीक तरीन बादलों से ही होती है। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं लोग। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं लोग। जिसके पास जो होता है उसने वही तकसीम करना होता है, इसलिए लोगों के रवैयों का कभी शिकवा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि सबकी झोलियां प्यार, खुलूस, अपनायत और बेगर्जी जैसे मोतियों से भरी हुई हों। इसलिए जहां जो मिले समझ लें कि वहां देने वाले के पास इससे बेहतर और कुछ नहीं था। मुझे मंजिलों का शौक था, मुझे रास्तों ने थका दिया। कभी जिन लोगों पर गरूर था, मुझे उन्होंने ही दगा दिया। मैंने कभी किसी मर्द को उसके घर की औरतों से महंगा लिबास पहनते नहीं देखा, हालांकि कमाता वही मर्द है। नानी कहा करती थी, मर्द के दुख बेजुबान होते हैं पुत्र। वो तो चार दोस्तों में बैठकर रो भी नहीं सकता, अपने दर्द का भी पर्दा रखता है। हजरत अली का फरमान है, अगर मेरी जिंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ
दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। अपने बच्चों को कम उम्री से रिश्तों को निभाना सिखाएं, सबको साथ लेकर चलना सिखाएं, तल्ख बातों को बर्दाश्त करना, किसी को परेशान देखकर उसका एहसास करना, बड़ों का एहतराम करना, हमसायों के साथ बेहतरीन सलूक रखना, गरीब और कमजोर पर रहम खाना, सदका और खैरात करना। खाना तो हैवान भी अपनी औलाद को खिला लेते हैं, असल बात तो बच्चों की अच्छी तरबियत करना होती है। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसासों में खुलूस और सोचों में सच्चाई हो, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए एक नेमत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जालिम को चंद रोज दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। कहते हैं मोहब्बत सीखने के लिए किसी का कुर्ब जरूरी है। आप किताबों, कहावतों, रवायात और कहानियों से मोहब्बत नहीं सीख सकते, उसके लिए एक जिंदा वजूद लाजिम है। जब कोई आपसे मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने हमसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और हमारे रब ने ही उसे आपका पता दिया था। मौत के दिन कब्र खोदने मोहल्ले के गरीब आते हैं, जबकि शादी के दिन अलग खाना अमीर के लिए लगाया जाता है। हम इज्तिमाई मुनाफिक हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई काम सख्त तकलीफ और परेशानी में डाल देता तो आप ये दुआ पढ़ते, या हय्यु या कुय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, ऐ जिंदा और हमेशा रहने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद चाहता हूँ।